the general quadratic formula. The formula is actually x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac whole upon 2a, where a, b, and c are the constants, the coefficients. Now, a is actually the coefficient of the highest power term. A is what? The coefficient of the highest power term. B is actually the coefficient of the middle term, and C is the term without the subject variable, यानी without x. चलो let me show कोई सी भी एक example मैं यहाँ पर लिखता हूँ, and then I will let you know कि A क्या है, B क्या है, and C क्या है. So for example, we are having a quadratic equation 3x square minus 4x plus 6 equals to 0. So let us identify what is A, what is the value of B, and what is the value of C. Because A is the coefficient of the highest power term, which is x square. So x square के साथ जो number है, that is 3. That's why यहाँ पे हमने identify कर लिया the value of A is 3. It is positive, इसलिए we have not written any of the sign here. Okay. B is what? The coefficient of the middle term, क्योंकि ये already organized है. सबसे पहले highest power per x power 1 and then the term which is without variable. So the value of B is, अच्छा x के साथ कौन है? It's not only 4, it is -4. We have to be very careful about these signs of the coefficient. And the value of C is positive 6. That's why I've written only 6. Okay. अब ये फॉर्मूला बना कैसे? अच्छा, once again, ये derivation जो है, that is not the part of your syllabus समझ लो, but it's I feel like it's my responsibility to let you know कि ये derive कैसे हुआ है. So the derivation of the general quadratic formula. अच्छा, क्योंकि इसका नाम जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसलिए है बिकॉज ये बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ जनरल फॉर्मेट. सो आई एम रीडिंग इट फ्रॉम हियर. The general form of the quadratic equation is given by actually ax square plus bx plus c equals to 0. लोग x स्क्वायर के साथ कौन मौजूद है? a. That's why a की वैल्यू हम हमेशा कब लिखते हैं? जो x स्क्वायर के साथ मौजूद होता है, plus bx, x के साथ middle term के साथ मौजूद है b, and the term which is without variable without x is c. Now what it is saying here, the formula, yani the general quadratic formula, is actually derived with the help of which method? Completing the square method. अच्छा, so इसका मतलब एक quick review कर लेते हैं what were the steps of completing the square method जल्दी से. Completing the square method का सबसे पहला step था divide all the terms by the coefficient of x square. x square के साथ अभी हमें क्या बता रहा हूँ आपको? derivation बता रहा हूँ, यानी completing the square method की मदद से जो हमने formula derive करना है वो बता रहा हूँ. So divide all the terms by coefficient of x square is the very first step. Second step, move the number term. कौन सा number term? यानी the term without variable, यानी it is talking about the term c. c को right hand side of the equation को move कर दिया जाएगा. चलो जी, second step भी हो गया. Third step क्या है? Complete the square on left hand side of the equation and balance this by adding the same value of the right side of the equation to the right hand side of the equation as well. Okay, क्या होगा उससे? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले we will have to find the third term जो कि add होगी expression या on both hand sides of the equation में. Step number 4, take the square root on both the sides of equation. Okay, and step number 5,
Subtract the number that remains on the left hand side of the equation to find x. अच्छा, स्टेप नंबर 5 क्या कहता है? अब जो भी है आपको x को अकेला करना है, सॉल्व करो x के साथ, ठीक है? So this is the general term. Now we are applying the very first step. First step क्या कहता है? Divide all the terms by the coefficient of x square. तो ax स्क्वायर को भी a से डिवाइड करना है, bx को भी a से डिवाइड करना है, c को भी a से डिवाइड करना है. So look, we have done it here. A upon a x square plus b upon a x plus c upon a equals to 0. सॉल्व किया, वी नो a से a हो गया कैंसिल, यहां पे बच गया खाली x स्क्वायर प्लस b अपॉन a टाइम्स x प्लस c अपॉन a equals to 0. This was the first step. Anyone having any confusion? Let me know right now by turning on your mic. Okay, fine. Moving to the second step. देखो ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हुआ है. नाउ अप्लाइंग द सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 क्या कहता है भैया? मूव द नंबर टर्म, यानी वो वाली टर्म जो विदाउट वेरिएबल है, वो कौन सी है? c अपॉन a. c अपॉन a को राइट हैंड साइड के ऊपर मूव करना है, बिकॉज इट इज पॉजिटिव, वहां जाके ये नेगेटिव हो जाएगा. सो इट विल बिकम लाइक दिस, x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x इक्वल्स टू नेगेटिव c अपॉन a. ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप क्या कहता है? फाइंड द थर्ड टर्म. मुझे थर्ड टर्म फाइंड करनी, बिकॉज वी आर डूइंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. सो थर्ड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा जनाब? थर्ड टर्म कहती है जो कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म है ना, उसको डिवाइड करो 2 से और फिर होल स्क्वायर कर दो. ओके, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म मुझे क्या नजर आई? मिडिल टर्म का कोफिशिएंट मुझे नजर आया सर b अपॉन a. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b अपॉन a होल अपॉन 2 होल स्क्वायर. ओके, अब b अपॉन a अपॉन 2 को सॉल्व कर रहा हूं मैं. b अपॉन 2 होल अपॉन 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b अपॉन a अप डिवाइडेड बाय 2. डिवीजन का मतलब होता है multiply by its reciprocal. So because two fractions are multiplying, तो ये बन जाएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई आएगा, न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर. तो ये क्या बन गया? b अपॉन 2a. सो थर्ड टर्म क्या मिल जाएगी मुझे? b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज एक्चुअली द थर्ड टर्म. इज एक्चुअली व्हाट? द थर्ड टर्म. थर्ड टर्म को समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताओ, मैं वापस बताता हूं आप by turning on your mic. Okay, okay, very good. हाँ, कौन? सर जैन भाई बोलिए. सर ये होल स्क्वायर कैसे आया? बेटा ये फॉर्मूला है, हमने देखो जैन भाई इसको सॉल्व किया. हेलो जैन. जी सर. देखो इधर, b अपॉन a होल अपॉन 2 होल स्क्वायर, यही है ना थर्ड टर्म का फॉर्मूला. तो b अपॉन a होल अपॉन 2 होल स्क्वायर तो था ही, होल स्क्वायर तो पहले से ही था. मैंने सिर्फ अंदर वाले को सॉल्व करके बताया. जी बेटा. अच्छा, ठीक है. ओके, turn off your mic. Anyone else? ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. देखो इस थर्ड टर्म को ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे मैंने बताया हुआ है. ये हो गया था हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप. ना थर्ड टर्म क्या कहता है? थर्ड टर्म का फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म अपॉन 2. सो वही b अपॉन a होल अपॉन 2 होल स्क्वायर. सो थर्ड टर्म हमारे पास आ गई b अपॉन 2a होल स्क्वायर. दिस इज द थर्ड टर्म. अभी अपन ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर का
स्क्वायर को कंप्लीट नहीं किया, यानी स्टेप नंबर 3 अभी बाकी है। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, अगर थर्ड टर्म आप लोगों ने फाइंड कर ली है, अब इसको इक्वेशन की दोनों साइड्स के ऊपर ऐड कर दो, सेम ऑपरेशन, बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन। सो लुक हियर, ये थर्ड टर्म आ गई यहाँ पे। अब we know that the third term is b upon 2a whole square. Repeating, this was the first step. फिर सेकंड स्टेप में हमने c अपॉन a को यहाँ पे मूव कर दिया। अब क्या करना है, ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है ना, इसको फोकस कीजिएगा। x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x तो ऑलरेडी था। व्हाट हैव वी डन, हमने क्या किया, ऐड कर दिया b अपॉन 2a होल स्क्वायर को, थर्ड टर्म की प्लेस के ऊपर ऐड कर दिया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हो गई कंप्लीट। साइन ऑफ इक्वालिटी माइनस c अपॉन a वाज ऑलरेडी देयर, क्योंकि मैंने वहां पे अपनी मर्जी से b अपॉन 2a होल स्क्वायर को ऐड किया है और ये एक इक्वेशन है, सो आई विल हैव टू डू सेम थिंग ऑन द अदर हैंड साइड। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी हमने क्या किया, b अपॉन 2a होल स्क्वायर को प्लस कर दिया। नाउ क्योंकि थर्ड टर्म ऐड करने के बाद ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, तो हमने क्या करना है, जिस तरीके से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हमें जब एनक्लोज करना होता है होल स्क्वायर में, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले का स्क्वायर रूट यानी ए स्क्वायर का ए लिखते हैं, आखिरी वाले का भी स्क्वायर रूट यानी बी स्क्वायर का बी लिखते हैं, और बीच वाले का साइन, तो ये बन जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर। सेम हमने यहाँ पे किया, एक्स स्क्वायर का x लिखा, b अपॉन 2a होल स्क्वायर का खाली b अपॉन 2a लिखा, मिडिल वाले की साइन लिखी, होल स्क्वायर के अंदर बंद कर दिया। इज इट ओके? नाउ वी हैव टू सॉल्व द राइट हैंड साइड। चलो जी, अब ये राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व किया जाएगा, we will have to take the LCMs on the slide and then I will let you know कि ये LCM कैसा आया, ठीक है? So सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड लिख रहा हूं मैं। राइट हैंड साइड कहती है माइनस c अपॉन a प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर को हमने सॉल्व करके लिखा, b स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, इन दोनों का हमें चाहिए एलसीएम। ओके, 4 a स्क्वायर विद द एलसीएम, इसको भी 4a स्क्वायर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4a, नीचे भी ऊपर भी, तो ऊपर क्या आ गया, माइनस का 4ac, और क्योंकि ये ऑलरेडी 4a स्क्वायर है तो ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सो b स्क्वायर, ऐसा कैसा। अब माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन 4a स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 4a स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ स्विच किया और कुछ नहीं हुआ, b स्क्वायर पहले लिख दिया, माइनस 4ac बाद में लिख दिया, नॉट अ बिग डील। लुक हियर, यहाँ पे भी हमने ऐसे किया है, तो हमने यहाँ पे दिया एलसीएम। ओके, ये बिल्कुल राइट हैंड साइड सेम हो गई है, बस यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हुई भी, वो नेक्स्ट स्लाइड में हो जाएगी। नाउ अभी भी ये कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप आता है, वो क्या कहता है, स्क्वायर रूट लेना चाहिए ऑन बोथ द साइड्स। ओके, सो हम अब स्क्वायर रूट ले रहे हैं ऑन बोथ द साइड, दिस वाज द प्रीवियस स्लाइड। अप्लाइंग स्टेप नंबर 4, take square roots on both the sides of the equation. Okay, we did it. अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और अंदर होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बच गया x प्लस b अपॉन 2a, ओके, इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब देखो बेटा, जो ऊपर वाली टर्म है यानी जो न्यूमरेटर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर लिखा हुआ है वो तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। वो किसका स्क्वायर है, 2a का। सो दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर के ऊपर अब मैंने अंडर रूट का साइन नहीं लगाया, स्क्वायर रूट का साइन इज ओनली विथ द न्यूमरेटर। ओके, देन स्टेप नंबर 5 क्या कहता है,
सॉल्व करो। सो दिस was the last thing we did. स्टेप नंबर 5 कहता है सॉल्व करो भाई। चलो जी ठीक है, अब मुझे x को सॉल्व करना है ना, तो ये प्लस का b/2a वहां पे मूव होगा, क्योंकि ये प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। तो जब वो यहाँ पे आया माइनस का हो गया, बिकॉज नाउ x हो गया बिल्कुल अकेला ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज दोनों फ्रैक्शन में बिल्कुल सेम है। अपॉन 2a यहाँ पे भी है, अपॉन 2a वहां पे भी है। सो इट मीन्स मुझे कोई एलसीएम की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली होल अपॉन लिख देंगे। सो माइनस बी आया यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम अब यूज करेंगे। दिस इज एक्चुअली हाउ वी डिराइव्ड इट। हमने तमाम के तमाम स्टेप्स कौन से यूज किए? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के, और फिर एक जनरल फॉर्मूला बना दिया। अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर 2 में, अगर उसने हमें डिफाइन नहीं किया हुआ क्वेश्चन में कि जनाब इस मेथड से करना है या फिर जनाब उस मेथड से करना है, सो for saving our time, we will always use this formula, the general quadratic formula, for solving quadratic equations. Okay, I'm giving you 2 minutes time. अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, so do let me know right now, then we will move on a question. वाह, सब कुछ समझ आ गया, यानी सब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। चलो, now example question, and this question is of paper 2. Solve करो। All of you start solving this right now. क्या है भैया? सबसे पहला काम, ए बी और सी को डिफाइन करना है, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, फिर फॉर्मूला पुट करके आप लोग करने के मुझे बताइएगा। सो द वैल्यू ऑफ ए हियर इज 1, the value of b here is 12, and the value of c here is 195. आप लोगों को क्या करना है? Just take your calculator, a pen, a copy, paper, whatsoever, substitute the values of a, b, and c in this formula. X equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac whole upon 2a. अब जहां जहां a है you have to write 1, जहां जहां b है you have to write 12, और जहां जहां c है you have to write minus 195. हमेशा याद रखना बेटे, जब कभी भी हमें किसी फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना है ना, तो सबसे पहले हम उसका एक स्पेसिमेन बना लेंगे, लाइक दिस। x इक्वल्स टू माइनस, अब देखो b की जगह मैंने ब्रैकेट बना दिया, प्लस माइनस अंडर रूट वंस अगेन b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। वैल्यूज अभी पुट नहीं किए हैं, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखा है विथ ब्रैकेट्स, कुछ नया नहीं किया। अच्छा, the right top I'm writing the values. A is 1, B is 12, and C is negative 195. ओके, मुझे पता है दो जगहों पे A आता है। A कहाँ कहाँ आता है? एक 4 के साथ और एक 2 के साथ। The value of A is 1, मैंने A की वैल्यू जल्दी से पुट कर दी। ओके, दो जगहों पे B आता है, B की वैल्यू है 12, B एक तो आएगा ब्रैकेट के
मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में, और अंडर रूट की बिल्कुल स्टार्टिंग में। एक ब्रैकेट बच गया ओनली, दैट इज द ब्रैकेट ऑफ सी। सो यहाँ पे लिख देंगे हम -195। हमने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है ना। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये बन जाएगा -12 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 12, इट इज 144। अब देखो पीछे साइन कौन सा आएगा, पहले साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। -4 प्लस 1 एंड -195, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। सो माइनस दो जगह पे है, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो 144 के साइन बाद जो साइन आएगा वो आएगा प्लस का। ओके, अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 टाइम्स इज 4 एंड 4 195 टाइम्स क्या होता है, जल्दी से हम देख लेते हैं क्या होता है। 4 multiplied by 195 and the answer is 780। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 780। होल अपॉन 2a, 2 वन सा क्या था 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या करना है मुझे, -12 प्लस माइनस 144 को 780 के अंदर प्लस करना है। तो रिटर्निंग टू आवर कैलकुलेटर, 780 plus 144 and the answer is 924। 924 लिख देंगे हम यहाँ पे, चलो साथ साथ लिख देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 924 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। देखो 924, जब तक स्क्वायर रूट के अंदर हम सब कुछ सॉल्व नहीं कर लेते, हम स्क्वायर रूट का फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ एक वैल्यू बच गई है, दैट इज 924। सो 924 को का स्क्वायर रूट देखते हैं क्या आता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर इज 30.397। 30.397। इसने हमें बोला है 1 डेसिमल प्लेस तक का, तो हम इसको 30.4 कर देते हैं। ओके, तो x इक्वल्स टू -12 प्लस माइनस 30.4 होल अपॉन 2। अब यहां से हम करेंगे इधर और, -12 प्लस 30.4 होल अपॉन 2 और -12 minus 30.4 whole upon 2. These two would be the two possible answers. चलो जी, two possible answers जल्दी से लिखता हूं मैं। So the two possible answers were either or वाला चीज, either x equals to -12 plus 30.4 whole upon 2 or x equals to -12 minus 30.4 whole upon 2। अब 30.4 में से 12 को माइनस किया तो आंसर क्या आएगा, 18.4। 18.4 upon 2 और x इक्वल्स टू -12 और -30.4 को डिवाइड किया जाएगा, सॉरी सॉल्व किया जाएगा तो आंसर विल बी -42.4 अपॉन 2।
अपॉन टू को सॉल्व किया जाएगा, x इक्वल्स टू 18.4 का आंसर आ जाएगा 9.2 और x इक्वल्स टू -42.4 का आंसर आएगा माइनस अपॉन टू ऑब्वियसली -21.2. These are the two possible answers for that question.